How did you meet शोले डायरेक्टर रमेश सिप्पी? आप Well, पहली मीटिंग कब हुई और कैसे हुई? okay, Bunyad. So I was जिसमें आप really वीरावली. Veeravali, but I Yes. was still modeling at that time actually, more actively, and television had just started. So I got a call from Rajshri saying that we've got a one episode kind of a thing, and we'd like you to come. It was a serial called Paying Guest. Right. And every episode would have a new paying guest and a story around that paying Okay, guest. okay. And I did it and enjoyed doing it because I did act from childhood. I did some plays in college, and so it was. आप तो I'm दिल्ली की रहने वाली है ना? दिल्ली की. So तो आप मुंबई आई उसके लिए? नहीं, मैं मॉडलिंग के लिए मुंबई आई थी. अच्छा. And I was living in Mumbai then because I was one of the top models at that time. Correct. Already, and I had done work for already 3-4 years before television came up, and then Right. I started working in television, maybe even a little longer, maybe 5 years. And so I did it and I enjoyed it, and then there was a serial called Bhajanab. Which was Shekhar Suman's first Yes, on मुझे याद television है. and mine Rajanam also. was a big hit. Yes, it was a big hit, but unfortunately we didn't go beyond 26 क्योंकि it was very Urduish. You know, it was शुद्ध Urdu because Lucknow का background था. Correct. And I actually got it because they were looking for a girl जिसकी ज़बान साफ हो. Okay. Okay, and me being from the north, being Right. Delhi, मैं ख्याल बोलती थी, ख्याल नहीं बोलती थी. I could say that. Right. So they were looking for someone who could talk like that, and that's how I got auditioned for it. Okay, for Vajanam. For Vajanab, and that's how I got the serial. Okay. So after Vajanab, Amit Khanna, who was working with Ramesh ji on Bunyad behind the scenes, they were looking for this character. They had actually started shooting. They'd taken another actor for this. Oh. And they had shot with her. वीरावली कोई और बनने वाली Yes, थी? yes. They had अच्छा. shot 2-3 episodes with her. नाम नहीं बताएंगे आप? नहीं. What is the point? What is the point? So, एक एक्टर के साथ उन्होंने 2-3 एपिसोड शूट कर लिए थे. अच्छा, बुनियाद के लिए. बुनियाद के, and then somehow रमेश जी was not happy with it. Okay. तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ और लोग लेके आइए, मुझे कास्टिंग, आई एम थिंकिंग ऑफ रीडूइंग दिस. So by the time I met him, they were in the 6th or 7th episode. Okay. और ये कैरेक्टर 3rd में शुरू हो जाता है. तो इस कैरेक्टर के सीन्स छोड़ के they were shooting. And so there was a lot of pressure on Okay, them to decide कि किसको ये रोल देना है and who to shoot it with. So I was in Delhi and I came back from Delhi. My nephew was born, came from Delhi, and at the airport I had this gentleman who was looking after my work at that stage. Say चलिए हमें फिल्म सिटी जाना है. लाइक एयरपोर्ट से फिल्म सिटी, एंड इट वाज लाइक 5:30 इन द इवनिंग, एंड आई एम सेइंग अभी इतना लेट क्यों जाना है? अच्छा, आपको मालूम नहीं था आप क्यों आए हैं? नो, उस टाइम फोन्स वर अ प्रॉब्लम. मोबाइल्स थोड़ी correct, होते थे कि correct. आप कॉल Yes. करके बोल देंगे. सो माय सेक्रेटरी हैड बीन टोल्ड कि यू नो वी वांट टू सी हर. Right. सो ही केम टू द एयरपोर्ट टू Okay. रिसीव मी, एंड एट द एयरपोर्ट ही सेड कि चलिए सीधा. सो माय कार वाज वेटिंग एंड हम सीधा फिल्म we went सिटी to चले film गए. city. जहाँ And शूटिंग हो रही थी. जहाँ शूटिंग हो रही थी. Okay. एंड रास्ते में वो मुझसे कह रहा है कि रमेश सिप्पी जी शूट कर रहे हैं बिल्कुल शोले स्टाइल में. मतलब 15-20 दिन से वो कारवां चल रहा है. when the you know the partition happened and how they were That's right. coming and वो शूटिंग चल रही है. and I'm thinking 15 दिन क्यों शूट करना पड़ता है? You know, I was such a novice Yeah. in the film industry. Right. I didn't understand कितने दिन क्यों शूटिंग करना पड़ता है. Right. And you know what really great creative people do, I had no clue. I'm not from the film industry. कहीं से भी. My father was a doctor. I'm from Delhi. I had no guidance here. Nobody to tell me ये सही है ये नहीं सही. I made many mistakes because of that. Right. Because I took the decisions, and those decisions were based on my thinking. Correct. तो anyway वहाँ गए, and रमेश जी वो shooting उस वक्त वो अनीता कंवर के साथ एक सीन कर रहे थे, आलोक एंड अनीता कंवर, एंड आउटडोर था, ओपन था वो. एंड वहाँ एक मंजी थी, यू नो. तो मुझे कहा बैठिए, तो मुझे मंजी पे बिठा दिया. एंड आई वाज वेयरिंग दिस वेस्टर्न ड्रेस वाइट कलर्ड, क्योंकि मुझे तो आइडिया नहीं था कि मैं यू नो यहाँ जाने वाली हूँ. तो मैं नॉर्मली वेस्टर्न कपड़े ही पहनती हूँ. तो मैं वो पहन के मैं बैठ गई है मंजी पे, एंड आई वाज वाचिंग द सीन. एंड वो सीन के बीच में जब एक छोटा सा ब्रेक आया, दे वर डूइंग द रीलाइटिंग फॉर व्हाटएवर, तो रमेश जी केम एंड सैट ऑन द चेयर. वो डायरेक्टर लिखा हुआ था, वो एक चेयर थी, वो आके उन्होंने रख दी, एंड रमेश जी बैठ गए.
and so he questioned me a little and he आपको said मालूम कि था कि ये रमेश सिप्पी है? हाँ, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं थी हु इज़ रमेश सिप्पी, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। मतलब हु इज़ मीन्स आई न्यू ही डायरेक्टेड फिल्म्स, बट आई नेवर न्यू वो कितने बड़े डायरेक्टर हैं, मुझे नहीं आइडिया था। ये नहीं मालूम था कि शोले के डायरेक्टर हैं? हाँ पता, बट अच्छा, मेरे मतलब दिल्ली में क्या हम लोग या मतलब नहीं इतना नॉलेज था। शोले भी नहीं देखा था? देखी थी, ओ देखी देखी थी, Okay. बट आई एम नॉट फ्रॉम द फिल्म वर्ल्ड, तो इतनी बड़ी हिट है, हम लोग ये थोड़ी दिल्ली में सोचते कि इतनी बड़ी हिट है, यू नो, और वी उन डोंट दिनों टॉक लाइक में दैट। हाँ, हम ऐसे थोड़ी बात करते हैं। तो पता था मेरी शोले की सरप्राइजिंगली जो मेमोरी है वो बड़ी अजीब सी मेमोरी है। तो बिफोर आई सॉ द, मेरे पेरेंट्स ना हमें ना बड़ा क्यूरेट करके फिल्में दिखाते थे। राइट। अगर थिएटर में जाना है तो पहले पूछा जाता था कि उसमें कोई ऐसे सीन्स तो नहीं है, यू नो, बच्चों के देखने लायक है, एंड देन वी वुड सी फ्यू फिल्म्स, यू नो, अपार्ट। साल में 4-5 फिल्म थिएटर में देखते थे, ऐसे थोड़ी कि हर वीक चले जाते थे। सो आई डिड सी शोले, बट मेमोरी ऐसी नहीं। बट शोले से पहले मेरी इरिटेशन एक दिन संडे को छुट्टी, एंड आई वांटेड टू स्लीप इन द आफ्टरनून, लस्सी वस्सी पी के, दिल्ली में, you know, दिल्ली में अच्छे पराठे लस्सी, और मैंने कहा अब सो जाते हैं, और वो किसी ने रिकॉर्ड चलाया, कितने आदमी थे, फिर कोई और लाइन, और वो बार बार, मतलब उसने पूरी दोपहर मुझे सोने नहीं दिया, कोई बिकॉज दे केप्ट neighborhood में? प्लेइंग। सामने स्पीकर पे था, तो कहीं अच्छा, आसपास कुछ okay, हाँ, फंक्शन हो रहा, मुझे नहीं right, पता क्या था, okay, बट आई कुड हियर दिस रिकॉर्ड प्लेइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सो दिस इज माई फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू शोले बिफोर आई सॉ द फिल्म। Oh, okay. An irritation का, it was an irritating लाइक मुझे reaction, सोना yeah. है यार, अभी सोने दो, तुम बार बार क्यों प्ले कर रहे हो? Yeah. क्योंकि मुझे नहीं पता था कितना क्रेज था, That's यू नो, बिकॉज वी डिडंट कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। That's right. सो तो जब आप मिली रमेश जी को और वो आपसे कुछ सवाल करने लगे, तो क्या हुआ, कैसी बातें हुई? हाँ, तो उन्होंने कुछ सवाल किए, फिर मुझे बोला कि डेट्स अवेलेबल हैं, तो मैंने कहा मैं तो मॉडलिंग करती हूँ, तो डेट्स अवेलेबल हैं, वी आर नॉट बुक्ड फॉर, यू नो, तो हमारे तो टाइम टू टाइम आता है, यस आई कैन डू इट। द नेक्स्ट थिंग ही आस्क्ड मी, वुड यू, हाउ ओल्ड आर यू? तो आई वाज लाइक, व्हाई डज ही वांट टू नो? तो मैंने कहा कि एज ओल्ड एज आई लुक, you know. I did not answer that question. Okay. So then he said, no, I'm asking क्योंकि would you be comfortable playing from young to old? और मैं तो so excited in my mind कि कितना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा मुझे, यंग टू ओल्ड, वाओ ब्यूटीफुल। ये नहीं सोचा कि इंडिया में कि फिल्म लाइन में परसेप्शंस होती हैं, आप एक बार ओल्ड प्ले कर लो तो आपके पास ओल्ड वाले रोल आने शुरू हो जाते हैं। और मेरी बैड लक कि बुनियाद में और महाभारत दोनों में मैंने यंग टू ओल्ड प्ले किया, लेकिन लास्ट मेमोरी फिर ओल्ड की रह जाती है, बिकॉज व्हाट यू सी एट द एंड, यू सी द पर्सन एज ओल्ड। सो इन दो के बाद तो मुझे बड़े बड़े हीरोज की मदर के रोल आते थे, मतलब जो मुझसे एज में बड़े थे। दो हिट, एकदम सुपर उत्तम टीवी सीरियल्स बुनियाद और महाभारत के बाद आपको मदर्स रोल आने लग गए। दैट इज व्हाई आई लॉस्ट आउट ऑन अ लॉट ऑफ वर्क, बिकॉज आई सेड हाउ कैन आई प्ले मदर एट दिस एज एंड टू पीपल हु आर ओल्डर देन मी। करेक्ट। मतलब वो मुझसे कम से कम 10 साल 12 साल 15 साल उम्र में ज्यादा है, और मैं उनकी मदर प्ले करूंगी, बट उन्होंने मुझे देखा एज अ मदर। सो मेरी जहाँ से बुनियाद बनी वहाँ बुनियाद खत्म भी हो गई, मतलब as far as सिनेमा इज कंसर्न। देश को नया आइडियाबाज बनने के लिए रजिस्टर करें ideabazdangal.com पर, या डाउनलोड करें आइडियाबाज दंगल ऐप, या फिर आप 9167777774 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं। अभी रजिस्टर कीजिए।